بلٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے توشہ خانہ اسکینڈل کی، جس میں ایک کے بعد ایک ہوش اڑا دینے والے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے نایاب گھڑی کے بعد ہیرے کی قیمتی انگوٹھیاں بھی لیں۔ توشہ خانہ سے لی گئی انگوٹھیاں عمران خان کے پاس ہیں یا نہیں، سوالات اٹھنے لگے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیے ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری کی رپورٹ میں۔ ایک کے بعد ایک کہانی، ایک کے بعد ایک اسکینڈل۔ توشہ خانہ سے صرف نایاب گھڑی ہی نہیں، قیمتی ہیروں کی انگوٹھیاں بھی لی گئیں۔ عرب ملک سے ملنے والی انگوٹھیاں کہاں گئیں؟ سرکاری دستاویز میں کچھ واضح نہیں، سوالات اٹھنے لگے۔ دستاویز کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کو 8 قیمتی تحائف دیے گئے۔ عمران خان نے 50% ادائیگی کے بعد ایک ہیرے کی انگوٹھی 40,500 تو دوسری صرف 74,700 روپے ادا کر کے حاصل کر لی۔ انگوٹھیوں کی قیمت کا تخمینہ 2,30,000 روپے لگایا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کو مجموعی طور پر بین الاقوامی دوروں پر 89 گفٹس ملے، جن کی مجموعی طور پر سرکاری قیمت 14 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ عمران خان نے صرف 2,15,16,000 ادا کر کے رکھ لیے۔ دستاویز میں انکشاف ہوا تحائف پالیسی کی سمری ستمبر 2018 سے 19 دسمبر 2018 تک ہولڈ پر رکھی گئی۔ اس دوران 45 گفٹس مفت میں ہی رکھے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 10 کروڑ 47,80,000 کے تحائف صرف 3 کروڑ 79 لاکھ روپے میں حاصل کیے۔ پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ احمد بلال نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے مطابق توشہ خانہ کے تحائف کی فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ 3 سال میں عمران خان کو 160 تحائف ملے، ان میں سے 55 مفت رکھ لیے گئے۔ عمران خان کی طرف سے حکومت کو ادا کی گئی رقم تخمینہ شدہ قیمت کا 27% ہے۔ احمد بلال نے یہ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے مطابق توشہ خانہ کے تحائف کی فہرست سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 سال میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 160 تحائف ملے، ان میں سے 55 انہوں نے مفت رکھ لیے۔ عمران خان کی طرف سے حکومت کو ادا کی گئی رقم تخمینہ شدہ قیمت کا 27% ہے۔ آرمی چیف کی تقرری سادہ معاملہ ہے، اسے متنازع بنایا جا رہا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں تعیناتی پر مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی، فیصلہ وزیر اعظم آئین و قانون کے مطابق ہی کریں گے۔ حکومت جانے کے بعد عمران خان بکھلائے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں ادارے سیاست میں مداخلت کریں۔ ایک سمپل تقرری ہے، سمپل پوسٹنگ ہے، جب بھی ہوتی ہے جو ادارہ ہے وہ سینئرز کے نام بھیجتا ہے، ان کو وزیر اعظم صاحب ایک نام کو ریکمنڈ کرتے ہیں اور وہ ایک ڈیو کورس ہے کہ کچھ دنوں میں پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ واپس سمری بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل چیز ہے، لیکن یہ اس کو متنازع بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ میسج ہے کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں اور جو آئین پاکستان ہے اس پر عمل کریں۔ مبارک ہو پاکستانیوں، خبر کی تفصیل کچھ ہی دیر میں۔ اور سندھ کے وزیر محنت سعید غنی کا کہنا ہے کہ پنڈی پلان پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ 26 نومبر کو عمران خان کو سیاسی قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ عمران خان کی باتوں پر مودی بھنگڑے ڈالتا ہے۔ عمران خان ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اسے گرفتار کیا جائے۔ پنڈی پلان پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ چلنے والے حب الوطن جو لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان کی جو سیاسی قبر ہے وہ کھود دی ہے اور 26 تاریخ کو اس میں دفن کر دیا۔ یار کوئی حد ہوتی ہے کہ گھڑی آپ نے بیچ دی اور پیسے جمع نہیں کرائے اس سے توشہ خانے میں، وہ پیسے بھی خریدار سے لیے۔ اس نے 5 کروڑ 10 لاکھ کا سودا کر دیا ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی چیزوں کا، اور وہ آپ رسید تو دیکھو یار، کوئی سبزی والا ایسا رسید نہیں دیتا۔ توشہ خانے میں جو اس کی ویلیو طے ہوئی تھی جو نکالی انہوں نے، وہ 10 کروڑ نکالی۔ ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے۔ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودی جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے، وہ پتہ نہیں
बंगले डाला होगा। ये इस मुल्क के इदारों का दुश्मन है, ये गैर मुल्की एजेंट है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर कोई वजीर आजम इस कदर घटिया हो सकता है, इतना बड़ा चोर हो सकता है, इतना बड़ा डाकू हो सकता है, तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए। और आपको बताएं, मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही का शिकार गरीब ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। COP27 ने मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त करके नई तारीख रकम कर दी है। मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फंड कायम कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मिस्र के शहर शर्म शेख में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की मौसर आवाज़ पर दुनिया का लब्बैक। पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया का मौसमियाती इंसाफ की तरफ बड़ा अमली इक़दाम अहम संग मील तय कर लिया गया। मुतासरा ममालिक की दाद रसी के लिए डैमेज एंड लॉस के नाम से आलमी फंड तश्कील। पेरिस अकॉर्ड और ग्रीन मार्शल प्लान के मुकाबले में COP27 का 7 और 8 नवंबर का इजलास नई तारीख रकम करके बाजी ले गया। 3 दहाइयों की देरीना कोशिशों के बाद फंड के क़याम में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और चीन समेत आलमी कायदीन ने अहम किरदार अदा किया। मौसमियाती नुकसानात के शिकार ख़ुसूसन पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक को डैमेज एंड लॉस फंड के जरिए माली मुआवनत मिल सकेगी। फंड पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में भी मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मिस्री सदर की खसूसी दावत पर इजलास में शिरकत की थी। शहबाज शरीफ डैमेज एंड लॉस के मौजू पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस के शरीक सदर नशीं भी बने थे। मिस्र शर्म शेख COP27 इजलास में सैलाब मुतासरा ममालिक के लिए फंड रेजिंग का तारीखी मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। I thank our hosts, the Egyptian government and COP27 President Sameh Shoukry, for their hospitality. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने COP27 मुआहिदे का खैर मकदम किया। कहा कि ये एक अहम कदम है, ताहम अभी बहुत कुछ करना बाकी है। We can and must win this battle for our lives. वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने COP27 एग्रीमेंट पर खुशी का इजहार किया। ट्वीट पैगाम में लिखते हैं, ये क्लाइमेट जस्टिस की जानिब पहला अहम कदम है। ट्रांजिशन कमेटी पर मुनहसर है कि किस तरह इस तारीख साज काम को अंजाम देती है। शहरी रहमान और उनकी टीम को सराहता हूँ कि जिनकी कोशिशें रंग ले आईं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने COP27 के इजलास से खिताब में मुतासरा मुल्कों के लिए फंड्स कायम करने पर शुक्रिया अदा किया। Thank you for this opportunity, Mr. President. You promised us an implementation COP and you delivered an implementation COP. So our congratulations to you and to all of us. शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली की वजह से बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। UN सेक्रेटरी जनरल ने सैलाबी सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर ने 20 साला नौजवान की जान ले ली। शहजाद छोटी बहन की फरमाइश पर नाश्ता लेने गया था। फहद भट्टी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। फहद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके नवाकोट में पेश आया, जिसमें 20 साला शहजाद अपनी छोटी बहन के लिए नाश्ता लेने के लिए घर से निकला और नवाकोट के इलाके में कातिल डोर का शिकार हो गया। डोर फिरने की वजह से खून ज़्यादा बह जाने की वजह से शहजाद की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जो मतवफ़ी की लाश है वो पुलिस के हवाले की। दूसरी जानिब बुरसा का ये मुतालबा है कि पतंग के खिलाफ, पतंग बनाने वालों के खिलाफ, डोरे बनाने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोई बेहतर तरीके से कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ठीक है फहद भट्टी, आपका शुक्रिया। यस, मैंने तो गोल कर दिया। अब देखना यह है कि जब मैदान भरा होगा तो कौन सी टीम ज्यादा गोल करने में कामयाब होती है।
वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इन मैचेस का है सबको इंतजार। मेगा इवेंट में 20 नवंबर से 18 दिसंबर के दरमियान 64 मैचेस खेले जाएंगे। प्राइज मनी है $440 मिलियन, जबकि चैंपियन टीम के हिस्से में आएंगे $44 मिलियन। कतर वर्ल्ड कप में ग्रुप ऑफ डेथ का दर्जा ग्रुप ई को हासिल है, जिसमें जर्मनी, स्पेन, जापान, कोस्टा रिका शामिल है, जबकि ग्रुप बी में भी सख्त मुकाबलों की तवक्को की जा रही है, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, वेल्स और ईरान की टीमें अगले राउंड में रसाई के लिए पंजा आजमाई करेंगी। वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में 4 बड़े मैचेस शेड्यूल हैं, जिन पर सबकी नजरें होंगी। सबसे बड़ा मैच 28 नवंबर को साबिक आलमी चैंपियंस स्पेन और जर्मनी के दरमियान होगा। दूसरा बड़ा मैच इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान 26 नवंबर को होगा, जो फुटबॉल के मैदान में हरीफ समझे जाते हैं। इंग्लैंड की टीम कभी भी अमेरिका को वर्ल्ड कप में नहीं हरा सकी, जबकि तीसरा बड़ा मैच, जो सियासी हालात की वजह से काफी अहम समझा जा रहा है, वो 30 नवंबर को अमेरिका और ईरान के दरमियान होगा। 2 दिसंबर को गाना और यूरुग्वे के दरमियान मैच पर भी सबकी नजरें होंगी। 2010 में होने वाला मैच सुआरेज की तरफ से हाथ से गोल रोकने की वजह से शायद सुर्खियों में रहा था। यह आलमी कप 35 साला लियोनेल मेसी और 37 साला क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी मार्का होगा। अब सवाल ये है, 2 अजीम खिलाड़ियों में से कौन इसे अपने लिए यादगार बना सकेगा। फीफा आलमी कप के आगाज से कबल ही फ्रांसीसी टीम को धचका। रवां साल बैलन ड'ओर अवार्ड जीतने वाले करीम बेंजेमा और स्ट्राइकर एंकन जख्मी होकर आलमी कप से बाहर हो गए। कतर पर होने वाली तनकीद पर फीफा के सदर ने मगरिब पर मुनाफकत का इल्जाम लगा दिया। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने इफ्तिताही मैच की भरपूर कवरेज का ऐलान कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से कबल ही दिफाई चैंपियन फ्रांस को इंजरीज ने घेर लिया। पोग्बा, एनगोलो कांते और क्रिस्टोफर कंकू के बाद बैलन ड'ओर अवार्ड के विनर करीम बेंजेमा भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बेंजेमा प्रैक्टिस सेशन में इंजरी के सबब इवेंट से बाहर हुए। इक्वाडोर ने मेजबान मुल्क कतर के खिलाफ इफ्तिताही मैच के लिए तैयारियों को फाइनल किया। फुटबॉलर्स ने प्रैक्टिस सेशन में भरपूर जान मारी। कतर पर होने वाली बेजा तनकीद पर फीफा के सदर दिफा में सामने आ गए। मगरिब पर मुनाफकत का इल्जाम लगा दिया। I'm European. Actually, I am European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क भी फीफा वर्ल्ड कप के सहर में मुब्तला। ट्वीट करके इफ्तिताही मैच की भरपूर कवरेज का ऐलान कर दिया। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर अमीर कतर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से कतर के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कहा है कि दुनिया को कतर की तारीख, सकाफत और मेहमान नवाजी का बेहतरीन तजर्बा हासिल होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है और अमीर कतर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने ये लिखा है कि दुनिया को कतर की तारीख, सकाफत, मेहमान नवाजी का बेहतरीन तजर्बा हासिल होगा। तो फुटबॉल होगी पाकिस्तान की। फुटबॉल के आलमी कप में मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार की गई फुटबॉल इस्तेमाल होगी। शहजाद अहमद की रिपोर्ट में देखिए। वर्ल्ड कप कतर में मगर फुट पाकिस्तान की। सियालकोट में तैयार होने वाली फुटबॉल अल रहला आलमी कप में इस्तेमाल होगी। कतरी सकाफत के रंगों से रंगी ऑफिशियल बॉल सियालकोट की फैक्ट्री में तैयार की गई है। इसमें पहली बार रिसाइकलिंग और वाटर बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अल रहला का मायने है सफर। फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाई गई ये ऑफिशियल बॉल 20 पैनल्स पर मुश्तमिल है। ये मुसलसल तीसरा मौका है जब वर्ल्ड कप मुकाबले पाकिस्तान में तैयार होने वाली फुटबॉल से खेले जाएंगे। आलमी इवेंट में पाकिस्तान की टीम तो शामिल नहीं है, मगर अल रहला कतर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट।
चलते हो तो स्वाद को चलिए। बुलेटिन में अब कुछ खबरें दुनिया भर से देखिए। तुर्किया ने शाम के शुमाली देहात पर बमबारी कर दी, कई इमारतें तबाह हो गईं। तुर्क हुक्काम ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह PKK के खिलाफ सरहद पार ऑपरेशन जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खरसोन से चले जाने के बाद कई शहरों में तवानाई की फराहमी मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी है। नेपाल में आज आम इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस पर कतारें लगी हैं। तवक्को की जा रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब होगा। इलेक्शन इंतजामिया ने कहा है कि हतमी नताइज के ऐलान में 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये लोगों की आवाज़ है, पोल में अवामी राय यही है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर रहे हैं। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया। और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में नई मॉडल की गाड़ियों का मेला लग गया। बिजली से चलने वाली कारें तवज्जो का मरकज। अफसोसनाक खबर आपको दें, नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर कार ट्रक से टकरा गई, 3 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। तफसील जानेंगे, इम्तियाज अली हमारे साथ हैं। इम्तियाज, इस हादसे से मुताल्लिक क्या मालूमात हैं आपके पास? राबता करने की कोशिश करते हैं। नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर कार ट्रक से टकरा गई है, 3 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए का ये बयान है कि कार सवार कराची से हैदराबाद जा रहे थे कि ये हादसा पेश आया। नूरियाबाद के करीब ट्रक की कार को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जान बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। मुमताज़ आलम-ए-दीन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ी उस्मानी को दारुल उलूम कराची कोरंगी में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी का सफ़र आखिरत। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा कराची दारुल उलूम कोरंगी में अदा की गई। नमाज जनाजे में मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज नईमुर रहमान और मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के उलमाए कराम समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद मरहूम को दारुल उलूम कोरंगी से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। रफ़ी उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुदब्बिर थे और बहुत बड़े मोहतमिम थे। वो दीन के हवाले से भी, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से भी बड़ा दर्द रखते थे और उनकी खिदमात को इंशाअल्लाह याद भी रखा जाएगा और उनके लिए सदका जारिया भी बनेंगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तान के कस्बे दियोबंद में 21 जुलाई 1936 को पैदा हुए। जामे दारुल उलूम कराची के सदर थे। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सरपरस्ते आला का ओहदा भी उन्हीं के पास था। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मुफ्ती आज़म देवबंद मोहम्मद शफी देवबंदी से हासिल की। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी का शुमार पाकिस्तान के सरकर्दा उलमा में होता था। उन्होंने 12 किताबें लिखी, जिनमें दरसे मुस्लिम, 2 कौमी नजरिया, नवादिरुल फ़िक़ह नुमाया हैं। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद कराची में जुमे की शब 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ज़ीशान मुगल के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का दावा। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में गुफ्तगू में मुखालिफिन पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। उन्होंने कल अभी बयान दिया है कि मुझ पर हमला हो या मेरी हुकूमत को ख़त्म करने का एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। ज़रदारी साहब का रिसेंटली बयान आप देख लें, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल ये तो आईनी तौर पे जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो पहले भी सिर्फ ड्रामे होते रहे हैं पंजाब में। अगर ड्रामे ना होते तो ये जो 10-15 साल के बाद जो ये सारी हम मुसीबतें कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ का किया धरा है एज ए चीफ मिनिस्टर। यकीन करें कि उसको काम आता ही नहीं है। अब देख लें, बुरी तरह एक्सपोज हो गया है।
नून वालों की ज़रा शक्लें गौर से देखें, इनके लीडरों की, वो उजड़ी हुई जिस तरह फसल होती है ना, वो नज़र आती है। अब आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत ने मेयर को इख्तियारात देने के लिए काबीना से मुसव्वदा मंजूर करवा लिया है। सिंध भर की तरक्याती अथॉरिटीज़ के चेयरमैन शहर के मेयर होंगे। सिंध हुकूमत ने अपनी काबीना से एक मुसव्वदा अप्रूव कराया है, जिस मुसव्वदे के तहत जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसके बाद जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होंगी सिंध भर की, उसका चेयरमैन इंशाअल्लाह मेयर होगा उस शहर का। हमने अपनी कमिटमेंट को शो कर दिया है, उस कानून को अपनी काबीना से मंजूर करा के, और गालिबन 28 नवंबर को सिंध असेंबली का इजलास भी हम बुलाने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जो कानून साजी करने की ज़रूरत है वो कर ली जाएगी। और कहीं हिजरत के मनाजिर तो कहीं भूख अफलास। चाइल्ड ऑफ एम्पायर शॉर्ट फिल्म लाहौर के नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में वर्चुअल रियलिटी के लिए पेश कर दी गई। आयशा अता की रिपोर्ट। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, इस हिजरत को वर्चुअल रियलिटी एनिमेशन की सूरत में नौजवान नस्ल के लिए पहली बार पेश किया गया। पाकिस्तान और भारत की तकसीम के इंतहाई जज्बाती मनाज़िर देखने वालों को माजी की तल्ख यादों में ले गए। जो ये मीडियम है, इसमें आपको वो पूरा वॉक थ्रू करा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें से गुजर रहे हो, उसमें आपको महसूस हो रहा है, और वो सिर्फ एक इंसान की तकलीफ या एक मुल्क की तकलीफ नहीं है, बिकॉज डिवीज़न हुई, 2 मुल्क बने। इंसान बहुत बेहतर तरीके से उस वाक़ये के बारे में जान सकता है, क्योंकि वो एक आपको बहुत अच्छा नज़रिया फराहम करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप उस वक्त में मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्री का मकसद अमन की तरवीज के साथ साथ तकसीम हिंद के दौरान हिजरत करने वालों की मुश्किलात और जज्बात से नई नस्ल को आगाह करना है। ये फिल्म आपको दिखाएगी हिजरत 2 लोगों की, जिन्होंने 1947 में इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया हिजरत की। ना सिर्फ आपको हम उनकी कहानी सुनाएंगे, पर हम अपने मुल्क की भी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। चाइल्ड ऑफ एम्पायर में लोगों की जिंदगियों पर होने वाले इसरात को खूबसूरत अंदाज में इन्हीं की जुबानी पेश किया गया है। कैमरामैन जवाद वहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। वेलकम बैक। जदीद मलेशिया के बानी महातीर मोहम्मद 53 साल की सियासत में पहली बार शिकस्त खा गए। साबिक वजीर आजम अपने हल्के की पार्लिमानी नशिस्त भी गवा बैठे। मलेशिया में इंतखाबी इनकलाब आ गया। निस्फ सदी की सियासी रिवायत में काया पलट हो गई। जदीद मलेशिया के बानी 97 साल के महातीर मोहम्मद 53 साल की सियासत में पहली बार न सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि अपने हल्के में भी शिकस्त खा गए। उनके हरीफ अनवार इब्राहिम का इत्तेहाद कामयाब हुआ। साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे मलेशिया की क़यादत की। आखिरी बार वो 10 मई 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे। इससे पहले वो 1981 से 2003 तक वज़ारत उज़्मा पर फाइज रहे। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया की तारीख बदली, समाजी और सियासी इनकलाब बर्पा किया, मगर वही महातीर मोहम्मद आज बदतरीन शिकस्त से दोचार हुए। जजीरा लंकावी के हल्के में उन्हें प्रीकितान इत्तेहाद के मोहम्मद सुहेमी अब्दुल्ला ने शिकस्त दी। आलमी ज़राए इब्लाग इसे मलेशिया की तारीख का बड़ा सियासी झटका करार दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तज्ज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मलेशिया के वोटर्स ने अज़्म जाहिर किया है कि करप्ट सियासी इत्तेहाद को पनपने नहीं देंगे। महातीर मोहम्मद चंद रोज पहले रॉयटर्स को इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अब 100 साल की उम्र हो रही है, सियासी तौर पर इतना सरगर्म नहीं रहा, अगर हारा तो सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। अगर आप पैरासेलिंग के शौकीन हैं तो हरिपुर के सयाहती मकाम खानपुर डैम से बेहतर कोई जगह नहीं है। देखिए आतिफ कयूम की रिपोर्ट में। पहाड़ों के बीच वाक़े खानपुर डैम मुल्क भर से सैर के लिए आने वालों की तवज्जो का मरकज रहता है। यहाँ सयाहों के लिए पैरासेलिंग के साथ कश्ती रानी का भी इंतजाम है। यहाँ का रुख करने वाले 3,500 रुपए अदा करके फिजा में 2 किलोमीटर तक का चक्कर लगाते हैं और इर्द गिर्द के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। बहुत मजे का है, मैं सबको रेकमेंड करूंगा यहाँ जरूर आएं
बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। मैं यूएस से आया हूँ खुद, यहाँ पे बहुत मज़ा आया है, बहुत फन था, थोड़ा एडवेंचर होता है बंदे का, आए यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है लोगों की। पैरासेलिंग से पहले मुतल्लिका रहबर उड़ने के ख्वाहिशमंद फर्द को उड़ान भरने और वापस उतरने के हवाले से अच्छी तरह रहनुमाई करते हैं। इधर से आप रनिंग करनी है, ऊपर जाके हाथ छोड़ देने, एंजॉय करें। जब आपका राउंड मुकम्मल होगा तो आपको बोट पायलट इशारा करेगा कि लेफ्ट साइड खींचिए, तो आपने सफेद बैंड को दोनों हाथ से नीचे खींचना है। कराची से आए हैं, यहाँ का वेदर बहुत ठंडा हो रहा है और यहाँ बहुत ठंड है, मज़ा आ रहा है, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। पैरासीलिंग भी की है, डैम है, यहाँ कश्ती रानी हो रही है, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। कश्ती रानी के साथ सेल्फियां ली जा रही हैं। खानपुर डैम को मजीद जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया जाए तो ये मकाम सयाहों के लिए ज्यादा दिलचस्पी का मरकज बन सकता है। आतिफ कय्यूम, समा, खानपुर डैम।